حریم آروش کمرے میں آئی تو حریم کو خاموش دیکھا، جس پہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حریم اپنی پریگنینسی کی بات جان گئی ہے۔ آپ کو پتہ چلا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ حریم بنا آروش کی جانب دیکھے بولی۔ جانتی ہوں آروش بس اتنا سا بولی۔ ہمیں لگ رہا ہے جیسے اللہ نے ہمیں ہمارے صبر کا اجر دیا ہے اولاد کی صورت میں۔ حریم کی بات پہ آروش چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ تو سمجھی تھی حریم یہ خبر جان کر شور مچائے گی، بچے گرانے والی بات کرے گی، مگر اس کے تاثرات خوشگوار تھے۔ وہ بہت وقت بعد آروش نے دیکھے تھے۔ تم خوش ہو؟ آروش کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آیا۔ کیا ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے آپی؟ ہمارا اپنا بچہ ہوگا آپی، ہمارے وجود کا حصہ۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمیں بچے کتنے پسند ہے، پر اس بار تو ہمارا اپنا ہوگا۔ آپ کو نہیں پتہ ہمیں کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ حریم نے بتایا تو آروش کو وہ کوئی پاگل لگی۔ مجھے تمہاری خوشی سمجھ نہیں آ رہی۔ آروش کے بنا نہ رہ پائی۔ کیوں آپی، کیا ہمارا خوش ہونا جائز نہیں؟ حریم نے پوچھا تو آروش اس کے پاس بیٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ تاپش، وہ ہمارا بچہ ہوگا آپی، کسی اور کا نہیں۔ ہم اس کی پرورش کریں گے اور جی جان لگا دیں گے۔ بیٹی ہوگی یا بیٹا، بیٹے کو کسی تاپش کی طرح نہیں بنائیں گے اور نہ بیٹی کو کمزور بنائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے اولاد کے لیے لوگوں کو ترستے ہوئے، مگر جب ہمیں بنا مانگے مل رہی ہے تو کیا ہم ناخوش ہو کر کفر نہیں کریں گے؟ آپ خود کہتی ہیں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو ہم نے اس بات کو اللہ کی رضا سمجھ کر خود کو راضی کر لیا ہے۔ ہم اس معصوم سے نفرت، حریم نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کیوں کریں جو سرے سے ہر بات سے انجان ہے، جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں۔ ہم نے ایک بات سیکھ لی ہے، انسان سے محبت کرو گے تو رل جاؤ گے، مگر اللہ سے محبت کرو گے تو سنور جاؤ گے۔ ہمیں آہستہ آہستہ ساری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اولاد سے نواز رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو پالنے کی سعادت بھی دیں گے۔ حریم اس کی بات کاٹ کر بولی، اور آج وہ اپنی باتوں سے آروش کو لاجواب کر چکی تھی۔ وہ جو کچھ اس نے نہیں سوچا تھا وہ حریم نے بیان کر دیا تھا۔ تم بدل گئی ہو حریم، آروش بس یہی بول پائی۔ اگر کسی اور وقت حریم پہ یہ باتیں کرتی تو وہ خوش ہو جاتی، مگر آج جانے کی اس کو افسوس ہو رہا تھا۔ اس کو حریم کی بچکانہ باتیں سننے کی عادی تھی، جس کی بات کی شروعات کسی سنگر سے شروع اور ایکٹر پر ختم ہو جاتی تھی، اور آج اس کے منہ سے اتنی گہری بات سن کر جانے اس کو دکھ ہوا تھا۔ ہم بدلنا چاہتے ہیں آپی۔ حریم اداس سا مسکرائی۔ وہ ہم سفر تھا، مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ جاؤ کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا، ہاں وہ ہم سفر تھا۔ آمنہ ماہی کے کمرے میں آئی تو اس کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس خارج کی، جو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس گمسم کھڑی تھی، جبکہ کمرے کا میوزک سسٹم آن تھا، جو یقیناً ماہی نے ہی آن کیا ہوگا۔ عداوتیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی، کہ دھوپ جاؤ کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا۔ آمنہ چلتی ہوئی مائی کے برابر کھڑی ہوتی اس کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں تو اداس تھیں، مگر چہرے پہ ایک عجیب سی رونق تھی، ماں بننے کی رونق۔ ماہی کے ماں بننے والی خبر ان سب کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ جو ماہی کے لیے خلا کا نوٹس تیار کرنے ہوئے کا سوچے ہوئے تھے، یہ خبر جاننے کے بعد تھم سے گئے تھے۔ تمہیں آج پھر جانا چاہیے، آمنہ کچھ دیر خاموش کھڑی ہونے کے بعد ماہی سے بولی، جس کو چپ لگ گئی تھی۔ کہاں؟ ماہی بنا اس کی جانب دیکھے بولی، شاہ حویلی۔ آمنہ نے بتایا، ایک بار گئی تھی، چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا۔ لالا اسلام آباد بھی گئے تھے، مگر شاہزادے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ مائی کندھے اچکا کر بولی، اسلام آباد کو چھوڑو، اس بار حویلی جاؤ، دیکھنا کوئی کچھ نہیں کہے گا، آخر کو تم ان کو وارث دینے والی ہو۔ آمنہ نے اس کو حوصلہ دینا چاہا۔ ان کو ونی میں جانے والی لڑکی سے وارث چاہیے ہوتا تو کیا یہ بات ہوتی؟ ماہی اپنا مذاق اڑاتی ہوئی بولی، ماہی پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، یہ بہت پیچیدہ معاملات ہیں۔ تم یہ بات جتنا ان سے چھپاؤ گی اتنا تمہارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے ہوش کے ناخن لو اور جاؤ حویلی۔ تم شاہ کی بیوی ہو، حویلی پہ تمہارا حق ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، اگر اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے۔ آمنہ نے اس بار سخت لہجے میں کہا، وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ مائی نے نیا خدشہ ظاہر کیا، مجھے تم پہ پہلے ہی بہت غصہ ہے مائی، ایک تو تم نے اتنی بڑی بات اپنے شوہر سے چھپائی، دوسرا تم اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہو۔ میں تمہارے لیے چادر نکالتی ہوں، جاؤ حویلی، یا میں بھی ساتھ چلتی ہوں؟ آمنہ نے سنجیدگی سے کہا، جاؤ لاؤ، میں اکیلی جاؤں گی۔ مائی نے کہا تو آمنہ نے شکر کا سانس خارج کیا۔
तुम यहाँ कोई काम था? फजर यामिन को स्कूल से वापस लाती घर आई तो अपने घर के बाहर अरमान को देखकर हैरान हुई। जी, यामिन से मिलने आया था, बहुत अरसा हो गया हम पार्क नहीं गए। अरमान यामिन को अपने गोद में उठाता फजर को देखकर बोला। यामिन स्कूल से थका हुआ आया है, कहीं नहीं जाएगा, खाना खाएगा फिर आराम करेगा। फजर ने संजीदगी से कहा, नहीं मम्मी मुझे जाना है। अरमान के कुछ कहने से पहले यामिन ने कहा तो अरमान के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, जबकि फजर ने इसको घूरा। कोई ज़रूरत नहीं सैर सपाटे करने की, फजर दो टोक कहती अरमान से यामिन लेने लगी तो अरमान ने जल्दी से यामिन को पीछे किया। क्या हो गया, क्यों जिद कर रही हैं? खुद तो मासूम को पास वाले पार्क तक नहीं लेकर जाती और मुझे भी मना कर रही हैं। मैं इतनी दूर से आया हूँ, उसका भी लिहाज कर लें। अरमान को आज फजर का अंदाज पसंद नहीं आया तो कहा, यामिन मेरा बेटा है, मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूँ, तुम इस मामला से दूर रहो तो बेहतर है। और रही बात दूर से आने की, तो अपनी मर्जी से आते हो, मैं नहीं आने का कहती आने के लिए। फजर ने बेरुखी से बोली, आप भी कहकर देख लें, सच्ची भागा भागा आऊँगा। अरमान शरारत से बोला, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम बच जाओ यहाँ से। फजर ने उसको आंखें दिखाई, हम तो पार्क जाएंगे, अगर आपने ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम। अरमान भी अपने नाम का एक था। भाड़ में जाओ तुम, तुम मुझे अपना बेटा वापस करो। फजर ज़िच हुई, उसको एक ही रट पे, ठीक है अब आपने खुद इजाज़त दी तो हम चलते हैं। अरमान इतना बाहर की जाने बढ़ने लगा तो फजर फ़ौरन से उसके रास्ते में हायल हुई। कहा। फजर ने आंखें छोटी की उसको घूरा। आपने जो कहा है अभी भाड़ में जाओ, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। अरमान मासूम शक्ल बनाए बोला तो यामिन खीखी करने लगा। तुम जहन्नुम में जाओ या भाड़ में, मगर मुझे मेरा बेटा वापस करो। पर मुझे अरमान गुस्सा मत दिलाओ। फजर ने सख्ती से कहा, मुझे क्या ज़रूरत है आपको गुस्सा दिलाने की, वो तो हर वक्त आपकी नाक में पहले से मौजूद होता है। अरमान ने जले पे नमक छिड़का। अरमान फजर ने गुस्से से उसके नाम को खींच कर अदा किया। जी मैं सुन रहा हूँ। फजर ने जितने गुस्से से उसका नाम लिया अरमान ने उतने ही प्यार से कहा तो फजर झंझला उठी। दफ़ा हो जहाँ जाना जाओ मेरी बला से, फजर से छूकर कहती अंदर जाने लगी। जब अरमान ने मज़ीद आग लगाई, दफ़ा कैसे जाऊँ, आप एड्रेस सेंड करें या छोड़ आती हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। अरमान की बात पे फजर ने पलट कर खा जाने वाली नज़रों से घूरा तो अरमान ने यामिन को बाहर ले जाने में ही आफियत समझी। हवेली के लिए दरवाजे बंद भी हो जाए तो परेशान मत हो, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले होंगे। माई जैसे तैसे करके हवेली में दाखिल हुई, मगर उसके कानों में बार बार शादिल की आवाज़ें गूंजने लगी तो उसकी आंखें पल भर में नम हुई थी। आपने तो मेरे लिए कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा शाज़िल, माही ने बेसाख्ता तसव्वुर में शाज़िल से शिकवा किया। तभी शाबाना की नज़र उस पर पड़ी तो वो दंदनाती उसके सर पर नाजिल हुई। तुम यहाँ फिर आ गई, शबाना ने बड़ी सी चादर में छुपे माई के वजूद को देखकर जगाड़ती आवाज़ में कहा। मुझे शाज़िल से मिलना है, कहाँ है वो? मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है उन्हें, माही ने अपने आंसू का गला घूट कर कहा। ओ बीबी, नहीं है वो यहाँ, और तुम पहली फुर्सत से यहाँ से बाहर निकलो, वरना धक्के देकर बाहर करूँगी। शबाना उसका बाजू दबोचती बोली, शादी इस्लामाबाद में भी नहीं, आप प्लीज़ बताएं वो कहाँ है, मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है इन्हें। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, प्लीज़ मुझ पर रहम करें, मेरा मिलना शादी से बहुत ज़रूरी है। माही ने रोते हुए मिन्नत की, जबकि उसकी बात पे शबाना के चेहरे पे एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। क्या बकवास है ये, शबाना चीखी। बकवास नहीं है, सच में प्रेग्नेंट हूँ, 2 माह से, खुदारा मेरी बात पे यकीन करें और बताएं शाजिल कहाँ है। माही फूट फूट कर रोती ज़मीन पे बैठती चली गई। जाने किसका गंध हमारे बेटे पे थूक रही है ये बदबख्त। फिरदौस बेगम जो अभी आई थी, उसकी बात सुनती बालों से पकड़ कर बोली, जिसकी तकलीफ से वो करा उठी, मगर उसके से ज़्यादा तकलीफ शादिल के गायब हो जाने पे थी। जाने वो कहाँ चला गया था, जो इससे एक बार भी इतने वक्त ने राब्ता नहीं किया था। मुझ पे बहुतान लगाते हुए अल्लाह से डरे। मैं अफसोस भरी नज़रों से इनको देख कर बोली, अच्छा बीबी, हम बहुतान लगा रहे हैं तो ये बच्चा पहले तो ज़ाहिर नहीं हुआ था, जब तू अपनी माँ के घर गई तो ये बच्चा अचानक से आ गया। फिरदौस बेगम की इस कदर घटिया बातें माई को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। मैं आप में से किसी के सामने भी जवाब दे नहीं, मुझे बस शादी से बात करनी है। माही अपने आंसू साफ करती उनसे बोली, बोला नहीं, क्या हो रहा है यहाँ? शबाना भी कुछ कहने वाली थी जब कुलसुम बेगम फारिया बेगम के साथ हॉल में आती रोबदार आवाज़ में पूछने लगी। कुलसुम बेगम को देखकर माही को कुछ सुकून मिला तो उसने एक उम्मीद की किरण नजर आई। आंटी, मुझे शाजिल से बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, मेरे पेट में जो बच्चा है वो शाजिल का है, खुदा के वास्ते मुझ पर कोई बहतान न लगाए। माही भागकर कुलसुम बेगम के पास आती बोली तो हैरत से सर से पैर तक उसको देखने लगी। शाजिल तो हवेली नहीं, वो तो तुम्हारे घर छोड़कर खुद शहर के लिए निकल गया था।
فاریہ بیگم اپنی حیرانگی چھپاتی اس کو جواب دینے لگی، تم ماں بننے والی ہو؟ کلثوم بیگم کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی، جس کو محسوس کر کے مائی کو کچھ ٹھارس ملی۔ چاچی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ اس کی سن کیوں رہی ہیں؟ باہر نکالے، جانے کس کا گن شازل کے نام کر رہی ہے؟ 2 ماہ سے اپنی ماں کے گھر تھی، جانے کس کے ساتھ مکالا کیا ہے؟ شبانہ حقارت بھرے لہجے میں کہتی، ہر حد پار کر گئی۔ شبانہ ہوش میں ہو؟ کیا بول رہی ہو؟ کسی کے کردار پر بہتان لگانا جانتی بھی ہو کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ فاریہ بیگم شبانہ کی بات سن کر ناگواری سے بولی، تم یہاں بیٹھو۔ کلثوم بیگم ایک اچٹی نظر شبانہ پہ ڈال کر ماہی کو پاس بڑے سینٹر صوفے پہ بیٹھانے لگی، جس کے پورے وجود میں کپ کپی تاری تھی۔ کب معلوم ہوا تمہیں؟ اور کیا شاذل کو پتہ ہے یہ بات؟ کلثوم بیگم نے اس کی زرد ہوتی رنگت دیکھ کر اس سے پوچھا، جس دن شاذل مجھے شہر کے لیے لے کر گئے تھے مجھے تب پتہ چلا تھا، پر اس بات سے شاذل لا علم ہے۔ ماہی نے ڈر کر بتایا، دیکھا ابھی اس کا جھوٹ پکڑا گیا، بھلا شاذل کو کیسے پتہ نہیں چلا جب وہ ساتھ تھا؟ شبانہ باز نہ آئی۔ آنٹی میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی، پر آپ میرا یقین کریں ایسا کچھ نہیں تھا جیسے یہ بول رہی ہے۔ ماہی نے بے بچی سے کلثوم بیگم کا ہاتھ تھام کر بولی، تم فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ، پھر بات ہوگی، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کلثوم بیگم اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں دیکھ کر بولی، چچی خاموش شبانہ، بہت بول لیا تم نے، مگر اب چپ کر جاؤ، یہ بچہ شاذل کا ہی ہے۔ مجھے تو پہلے اس کی طبیعت پہ شک ہو رہا تھا، مگر شاذل اس کو میکے لے کر گیا تو میں خاموش ہو گئی۔ اب مجھے پتہ چلا شاذل کیوں اس کو حویلی میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے تم لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ جانور سے زیادہ بدتر ہوگا۔ مگر ایک بات سن لو، تم سب سے پہلے میں خاموش تھی، میں تم لوگوں کا اس معصوم کے ساتھ رویہ جیسے بھی تھا میں نے دیکھ کر اندیکھا کر دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ تمہارے سہاگ کے قاتل کی بہن ہے، تمہارا وقتی غصہ ہے، پر اب تم نے دوسری شادی کر لی، اب دیدار شاہ تمہارا سہاگ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس پر توجہ دو۔ تمہارا ایک شوہر تھا تو فاریہ کا بڑا بیٹا تھا، اس نے کبھی اس پہ غصے سے بھری نگاہ بھی نہیں ڈالی، پھر تم کیوں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ بخش دو اب اس کو، ویسے بھی کچھ دن کی مہمان ہے، پھر شاذل اس کو اپنے ساتھ شہر لے کر جائے گا۔ کلثوم بیگم نے پوری طرح سے فردوس بیگم اور شبانہ کو ایک ساتھ لڑاڑا، جس سے دونوں کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس 2 ٹوکے کی لڑکی کی وجہ سے آپ میری بے عزتی کر رہی ہیں، میں اس حویلی کی بڑی بہو ہوں۔ شبانہ چیخی، جس لڑکی کو تم 2 ٹکے کا بول رہی ہو حویلی کے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے شاذل کی بیوی ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا نا تو کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ کلثوم بیگم نے طنزیہ انداز اپنایا، یہ ایک وینی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، آپ کو کیوں اس کی اوقات بھول رہی ہیں؟ شبانہ پاگل ہونے کے در پہ تھی، جبکہ مائی بس رونے میں مصروف تھی۔ اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ لڑکی حویلی کو وارث دینے والی ہے، جو تم نے 10 سالوں تک نہیں دیا۔ کلثوم بیگم نے 2 ٹوک کہا، آپ میری بے عزتی پہ بے عزتی کیے جا رہی ہے، میں برداشت نہیں کروں گی۔ شبانہ نے غصے سے ماہی کو دیکھا، کلثوم بیگم سے بولی، میں بس تمہیں حقیقت سے روشناس کروا رہی ہوں۔ کلثوم بیگم کا آج انداز ہی الگ تھا، یہ وارث نہیں دے گی۔ شبانہ نے غصے سے کہا، اٹھو، میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ آؤں۔ کلثوم بیگم شبانہ کو نظر انداز کرتی ماہی کو سہارا دیتی بولی، تو ماہی نے تشکر بھری نظر سے ان کو دیکھا جو آج ان کے لیے وسیلہ بن کر آئی تھی، اور اب وہ ماہی کو کسی فرشتے سے کم نہیں لگی۔ السلام علیکم۔ درشا آرویش حریم یہ بھی اس وقت شہر سے واپس آئے تو سب کو ایک ساتھ کھڑا پایا تو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم سب، کیا ہوا تھا حریم کو؟ فاریہ بیگم سلام کا جواب دیتی پوچھنے لگی، آپ سب بیٹھے میں بتاتی ہوں۔ آرویش ایک نظر حریم پر ڈال کر بولی، جبکہ کلثوم بیگم ماہی کو لے کر اوپر چلی گئی تھی۔ آپ ہی ہم اپنے کمرے میں جائیں گے، حریم آرویش سے بولتے سے محض سر اسبات میں ہلایا، بتا بھی چکو کیا ہوا ہے۔ فردوس بیگم چلے کٹے انداز میں بولی، السلام علیکم چچا صاحب۔ آرویش نے ارباز شاہ کو حویلی میں آتا دیکھا تو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارباز شاہ سلام کا جواب دیتے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حریم ماں بننے والی ہے، آرویش سب کو دیکھ کر بولی تو سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے، سوائے فاریہ بیگم کے، کیونکہ ان کو پہلے سے اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ فردوس بیگم اپنا کان اس کے سامنے کیے بولی تو آرویش نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بیچا۔ حریم ماں بننے والی ہے، آرویش اس بات کچھ تیز آواز میں بولی، ماشاءاللہ مجھے پتا تھا یہی بات ہوگی، پر حریم کا رد عمل کیسا تھا؟ فاریہ بیگم کچھ فکر مندی سے بولی، ہمیں تاپش کا بچہ نہیں چاہیے، حریم کو چاہیے وہ اپنا بچہ گرائے۔ آرویش کے کچھ کہنے سے پہلے فردوس بیگم حقارت سے سر جھٹک کر بولی۔ ہال میں سناٹا سا چھا گیا۔ ان کی بات پر جب ان کی سب سے درمیان بیٹھا دریشا بس اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ سوچ سمجھ کے بولا کرو فردوس، کیا جانتی نہیں کتنا بڑا گناہ ہے؟
फारिया बेगम ने सख्ती से उनको टपटा। बिल्कुल ठीक बोल रही है अम्मा। अब क्या हम उस वक्त के बच्चे हवेली में पालेंगे? शबाना नखुश से सर झटक कर बोली। तुम दोनों माँ और बेटी को क्या है? फारिया बेगम दोनों को देखकर कोफ से बोली, जो पहले माई के पीछे पड़े थे अब हरीम के। वो सिर्फ तापिश लाला का बच्चा नहीं होगा, अब हरीम का भी होगा। आप लोगों को अंदाज़ा भी ना हो ऐसा जुमले हरीम के दिल पे क्या असर करेंगे। वो खुद इस मासूम से नफरत करने लगेगी जो इस दुनिया में आया ही नहीं। आरुष फिरदौस बेगम के खामोश होने के बाद हरीम के दिफा में बोली, खून तो उस तापिश का होगा ना। फिरदौस बेगम तंजिया बोली, मगर परवरिश तो यहाँ हवेली में होगी ना। खून से ज़्यादा परवरिश असर करती है ना। उसकी परवरिश यहाँ हवेली में होगी तो इन बातों का मतलब? आरविश ने संजीदगी से कहा, करीम का बच्चा यहाँ नहीं रहेगा तो मतलब नहीं रहेगा। फिरदौस बेगम अपनी जगह बसित हुई। मैं हरीम से निकाह करूँगा, उसकी इद्दत के दूसरे दिन देखता हूँ फिर कौन मेरे मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बात करता है। दुनिया की बात उन सबके सरों पे बिजली की तरह गिरी। होश में रहो बरखुदा। अरबाज शाह ने तंजिया कहा। बिल्कुल होश में हूँ, निकाह सादगी से हुआ, इसलिए किसी को भी कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। तुरंत बेतासुल लहजे में बोला, ऐसा नहीं हो सकता। फिरदौस बेगम ने इतराज़ उठाया, ऐसा हो सकता है या नहीं इस बात का फैसला मैं करूँगा। दुरेत का लहजा हद दर्जा सर्द हो गया था। बेटा जी, अकल के नाखुन लो, जोश में होश गवा बैठे हो। हरी माँ बनने वाली है तो फिर कैसे तुम इसकी इद्दत के अगले दिन निकाह करोगे? फिरदौस बेगम का लहजा तंजिया से भरपूर था। मैं समझा नहीं। दुरेद नासमझी से उन सबको देखकर बोला, लाला, अगर लड़की माँ बनने वाली तो उससे दरमियान दूसरा निकाह नहीं हो सकता। अगर हरीम से निकाह करना भी चाहते हो तो बच्चे के पैदा होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बार आरविश ने दुरेद को समझाने वाले अंदाज में कहा तो दुरेद खामोश हो गया था। उसके लिए इंतज़ार की घड़ियाँ तवील से तवील होती जा रही थी। तुम ठीक हो? अरब फिक्रमंदी से शाजिल को देखकर बोला, जो अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। मैं ठीक हूँ, मगर उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरा खूबसूरत हुलिया बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाजिल अपने माथे पे हाथ रखता सेल फोन के फ्रंट कैमरा खोलकर अपना चेहरा देखकर बोला, शुक्र कर तेरी जान बच गई। और एक तो ये है कि जिसको अपनी शक्ल की पड़ी हो, अगर जान ही ना रहती तो इस शक्ल का तू अचार डालना था। शहजादे दो दो दिनों से उसके लिए परेशान था। शार्दुल के होश में आने के बाद ऐसी बात सुनकर दांत पीस कर बोला, मैं अचार नहीं खाता। खैर ये बताओ, मेरा एक्सीडेंट करने के बाद वो कमीना पकड़ा गया या मौके पर ही भाग गया? शार्दुल ने दोनों को देखकर पूछने लगा। पकड़ा गया, उसकी फिक्र नहीं करो तुम। अरहम ने जवाब दिया, मेरे पास और भी बहुत से काम है सिवाय इस फिक्र के। शार्दुल मुंह के जाविये बनाता अपनी सेल्फी बनाने लगा। तुम ये फ़ोन इधर करो। न तब का इसके हाथ से फ़ोन छीना। क्या यार का तस्वीर तो बनाने दो ताकि याद रहे मुझे चोट भी आई थी। शार्दुल उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, ये कोई इतना ख़ास मौका नहीं जो तुमने यादगार बनाना है। तुम्हारे पूरे 2 माह से घर से राब्ता नहीं हुआ। तुम्हें अंदाज़ा है वो कितने परेशान होंगे। अरन ने इसको घड़का। ओह हाँ, माई तो बहुत परेशान हो रही होगी। शार्दुल को अचानक ख्याल आया तो कहा, तो अपने सर पे हाथ मारकर बोला, माई। रजा अरन ना समझी से उसको देखने लगे। तुम दोनों की भाभी है इसलिए भाभी बोलो। और मुझे याद आया मेरे हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी, वो कहाँ गई? शादिल फिक्रमंदी वाले तासुरात सजाए बोला, वो तो मेरी गाड़ी में किस चीज़ की रिपोर्ट थी, हमने चेक ही नहीं की थी। राजा ने जवाब दिया, वो दरअसल मुझे शर्म आ रही है। शाजिल दोनों को देखकर शर्माने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला, शाजिल तू ना आज हमें बहुत गुस्सा दिला रहा है। इस बार अरहम सच हुआ। यार क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है। शाजिल में हवा देख कर बोला, ना बता। अरहम तो गाड़ी से रिपोर्ट्स ला, खुद ही देख लेंगे क्या माजरा है। रज़ा आराम से बोला, अरे नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। दरअसल मैं बाप के रुतबे पे फाइज होने वाला हूँ। कितनी अजीब बात है ना, हवेली में सबसे छोटा बेटा हूँ मैं और सबसे पहले ये शर्फ मुझे हासिल हो रहा है। शाजिल अपनी धुन में बताने लगा, जबकि आराम और रज़ा मुंह खोले इसको देखने लगे, जिसका चेहरा ये बात बताते वक्त चमक रहा था। तुम मजाक कर रहे हो? रज़ा ने अपनी हैरत पे काबू पाते हुए पूछा। मजाक करने के लिए मुझे यही बात रह गई थी क्या कि मैं बाप बनने वाला हूँ? कमीनों, मैं सच में बाप बनने वाला हूँ। शाजिल बदमज़ा होता दोनों को घूर कर बोला, इतनी जल्दी तू तू पहले इससे शादी से खुश नहीं था? रज़ा अब भी मानने से इनकारी था। हाँ, और कैसे निकाह के दिन यहाँ इस्लामाबाद पहुँच गया था? अरम भी रज़ा की बात से मुत्तफिक हुआ। सबसे पहले इतना जल्दी नहीं हुआ, 1.5 साल हो गया है हमारी शादी को। अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कुछ नहीं, वो पहले की बात थी। शाजिल मज़े से बोला, यार अरम कोई पहले बड़े टंके की चोट पे कहा करता था कि मैं सैयद शादिल शाह हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, और अब वो बाप के रुतबे में फाइज होने वाला है। वाकई ये बहुत अच्छी बात है नहीं? रज़ा चिढ़ाने वाले नज़रों से शादिल को देखा आराम से बोला तो शादिल कुछ सटपटाया।
अरे ये तो कुछ भी नहीं, याद है एक दफ़ा शादिल ने क्या कहा था, हरम रज़ा का साथ देता, सोचने की अदाकारी की, रज़ा से बोला तो शादिल ने उसको आँखें दिखाई, मगर उन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे याद है, मगर तुम ठीक से याद करवा दो। रज़ा अरहम को देखकर बोला। मोहतरम सैयद शादी शाह के अनमोल अल्फाजों में से चंद अल्फाज ज़ेर असर ये है कि नकल उतारते हुए मुझे इन लोगों पे ताज्जुब होता है जो मोहब्बत के नाम पे अपनी सारी ज़िंदगी एक लड़की के साथ गुजार लेते हैं। मैं तो 2 दिन एक ही लड़की की शक्ल देखूँ तो बोरियत होती है। ज़िंदगी एक बार मिलती है तो क्या गुज़ारा भी एक से हो? नो नेवर हूँ। अरब बाकायदा शादी की नकल उतारते हुए रज़ा की गिरद चक्कर काटते बोला तो रज़ा हँस पड़ा। अब बस भी करो, पुरानी बातें थी। शादी ने उनको ज़िद किए पछताया। कहाँ पुरानी बातें यार, हमारे लिए तो कल की बात है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था 2 दिन एक शक्ल देखकर बोरियत का शिकार होने वाला शख्स एक लड़की की शक्ल 1.5 साल कैसे बर्दाश्त कर गया। और अब बाज नहीं आया। मार खाओगे अब तुम दोनों मुझसे, शादी ने दाँत पीस कर कहा। हमारा पता नहीं, बीवी से तुझे ज़रूर मार पड़ने वाली है। रज़ा इतना बोलकर ज़ोर से कैफ में लगाने लगा तो शादी ने दाँत कचकचाए। ये आज से तुम्हारे साथ रहेगी। कुलसुम बेगम ने पास खड़ी मुलाज़िमा की जानिब इशारा किया। माही को बताया। पर क्यों? माही को समझ नहीं आया। क्योंकि तुम माशाअल्लाह से माँ बनने वाली है तो कोई तो हो जो तुम्हारा ख़्याल रखे, और तुमने लापरवाही का मुज़ाहरा नहीं करना, अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। कुलसुम बेगम ने समझाया। आपका शुक्रिया, अगर कल आप ना होती तो मैं यहाँ ना होती। मामी सर झुकाए बस इतना बोली। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम मेरी शादिल की बीवी हो, ऐसे में मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारा ख़्याल रखना। खैर अपना दिमाग हर सोच से आज़ाद करो, ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं, बस आराम करो। कुलसुम बेगम उसके सर पे हाथ फेर कर बोली तो माही ने सर इस्बात में हिलाया। मैंने नाहिद को तुम्हारे खाने पीने का बता दिया, इसलिए ये जो कहे तुम्हें मानना होगा। कुलसुम बेगम जाते जाते ताकीद करना ना भूली। क्या हुआ, आज आप खामोश हैं? हरी ने आरविश को आज मामूल से ज़्यादा संजीदा देखा तो पूछा। तुम्हें बताया था ना, मैं साहब बाबा साहब की बेटी नहीं। आरवी सपाट लहजे में उससे बोली। जी। हरी बस ये बोल पाई। कुछ माह बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी हमेशा के लिए। जाने से पहले एक बात कहूँगी, तुम्हारे दूल्हा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अगर तुम्हारी मोहब्बत को कबूल नहीं किया तो इसमें उन्होंने तुम्हारा भला चाहा था। तुम पे ये बात मत सोचना कि वो तुम्हें अपने काबिल नहीं समझते, बल्कि वो खुद तुम्हारे काबिल नहीं समझते थे। अम्मा साई ने जब तुम्हारे लिए तापिश लाला का रिश्ता सामने किया तो उन्होंने इनकार किया था। फिर तुम्हारी लाला से शादी करने की ज़िद ने इन्हें मजबूर किया कोई सख्त कदम उठाने पर। उन्होंने अपनी मोहब्बत को पाने से पहले खोया था। हरीन जब वो महज 20-21 साल के थे, तुम्हें उनके गम का अंदाज़ा नहीं हो सकता। वो समझते थे कि अगर तुम्हारी शादी उनसे हो गई तो वो कहीं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी ना कर जाए। तो रेशा जो मेरे लाला है, वो जब तुम्हारे लिए कुछ खरीदते थे तो चप्पल तक मुलायम लेते थे कि कहीं चलने में तुम्हें मसला ना हो, तुम्हारे पैरों में कहीं दर्द ना पड़ जाए। वो बहुत मोहतात रहते थे, मगर हरी उनके एक गलत फैसले की वजह से वो मोहब्बत ना भूलना जो उन्होंने तुम्हें दी थी, जो वो तुम पर लुटा चुके थे। तुम्हारे लाला ने 2 कत्ल किए और वो 2 ही कत्ल तुम्हारी वजह से किए हैं। पहला कत्ल अपनी 15 साला ज़िंदगी में किया था, माली का कत्ल सिर्फ़ इस बात पे कि उनकी एक गलती की वजह से तुम्हारे पाँव पे चोट आई थी, तुम्हारी आँखों से आँसू निकले थे। लाला रात के पहर अपना दायाँ पैर जलते कोयलों पे रखते तब तक रखा जब तक तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तुम्हारी चोट का निशान तो मिट गया था, मगर लाला का दायाँ पैर अगर देखोगी ना तो आज भी वो निशान नज़र आएँगे। लाला ने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, मगर उसने पाने की ख्वाहिश हासिल की तमन्ना नहीं थी। लाला की मोहब्बत बस इतनी है कि वो बस तुम्हें खुश और मुतमईन देखना चाहते थे। वो तुम्हारी ज़िंदगी गुलज़ार बनाना चाहते थे। सबको लगता था लाला शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि उनसे उनकी मोहब्बत छीनी गई, मगर दर हकीकत उन्होंने तुम्हारी वजह से शादी नहीं की। अगर वो शादी करते तो यकीनन अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में मगन हो जाते। उनकी तवज्जो तुम पर हटती तो ना मगर कम ज़रूर हो जाती, जो लाला नहीं चाहते थे। एक 12 साल के बच्चे का ज़हन कच्चा होता है जो बाद में बहुत पक्का साबित होता है। बड़े लोग बातें फरामोश कर जाते हैं, मगर बच्चे नहीं। लाला 12 के थे। फूफो ने तुम्हारी ज़िम्मेदारी लाला को दी थी। लाला चाहते थे वो उनकी बात को नॉर्मली लेते, कोई कुछ कहता भी ना क्योंकि वो बच्चे थे। तो रिशा जो अपनी इस्तेमालशुदा चीज़ें भी किसी को नहीं देते थे, उन्होंने अपना कमरा तक तुम्हारे साथ शेयर किया। वो तो तुम जब 6 साल की हुई तो अम्मा साई ने उनसे कहा हरीम का अब तुम्हारे कमरे में रहना ठीक नहीं लगता, उसको दूसरे कमरे में रहना चाहिए। तो लाला मान गए। तुम्हें अगर चोट लगती थी तो तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें होती थी। तुम्हारे साथ
जो हादसा पेश आया उसको तुम किस्मत का लिखा समझती हो तो लाला को ज़िम्मेदार, मगर कभी ये भी सोचा करो कि तुम्हारी तकलीफ़ें उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी जो उन्होंने ताबिश लाला का कत्ल तक कर डाला। अब जब तक तुम इन्हें इन्हें कहोगी मेरी हालत के असल गुनहगार आप हैं, तो ये लाला के साथ हकीकतन नाइंसाफ़ी होगी। इन्हें जानबूझकर तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं लिया। गलतियाँ इंसान करते हैं, गलत फ़ैसले भी इन्हीं से हुआ करते हैं। मगर एक बात की वजह से गुज़री हुई बेलौस मोहब्बत को फ़रामोश नहीं किया जाता। अगर तुम्हारे लिए फ़ैसला लाला की बजाय तुम्हारे वालिदैन से होता तो तुम इनको माफ़ कर देती ना। तो मैं बस ये कहूँगी उनको भी माफ़ कर देना। ज़रूरी नहीं पछतावा मोहब्बत का खोना, एहसास नदामत बस मेरे दुर्द लाला के हिस्से में आए। उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ मुख्तसर ही रही हैं, किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हुआ करती। मेरे लाला की तो बिल्कुल भी नहीं। आरवी शरीफ का हाथ पकड़ती ठहरे हुए लहजे में उसको बताने लगी, जबकि हरीम अपनी सांस तक रोक चुकी थी। आरविश ने जाने उससे क्या कुछ कहा था, मगर उसके कानों में बस ये अल्फाज गूंज रहे थे। दुर्द लाला ने 2 कत्ल किए और वो 2 ही कत्ल तुम्हारी वजह से किए हैं। पहला कत्ल अपनी 15 साला ज़िंदगी में किया था, माली का कत्ल सिर्फ़ इस बात पे कि उनकी एक गलती की वजह से तुम्हारे पाँव पे चोट आई थी, तुम्हारी आँखों से आँसू निकले थे। लाला रात के पहर अपना दायाँ पैर चलते कोयलों पे रखते तब तक रखा जब तक तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तुम्हारी चोट का निशान तो मिट गया था, मगर लाला का दायाँ पैर अगर देखोगी ना तो आज भी वो निशान नज़र आएँगे। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफ़ा का ज़िक्र, काश उस ज़बान दराज़ का मुँह नोच ले कोई जॉन एलिया। अगर उन्होंने हमसे बेलौस मोहब्बत की है तो हमें बेलौस ज़ख्म भी दिए हैं, जिनकी तकलीफ़ उनकी दी गई मोहब्बतों से ज़्यादा है। हम तकलीफ़ को भुलाकर मोहब्बत याद करना भी चाहें तो हमसे ना हो पाएगा। माफ़ी माँगना मुश्किल नहीं, पर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। हरीम अपना हाथ आरविश के हाथ से छुड़वाती सपाट लहजे में बोली, तो आरविश ने अफ़सोस भरी नज़रों से इसको देखा। तुम लाला के मामले में खुदगर्ज़ी का मुज़ाहिरा कर रही हो। अगर यही सब तुम लाला के साथ करती तो वो जवाब में उफ़ तक ना करते, क्योंकि उनका दिल तुम्हारे मामले में वसी है। वो तुम्हारे 100 कत्ल तक माफ़ कर देंगे। आरवी अफ़सोस भरी नज़रों से उसको देखकर बोली, अगर कोई आपकी मोहब्बत को ठुकराए तो आप क्या करेंगी? हरीम के सवाल पे आरविश के कदम ज़मीन पे जगड़ से गए थे। मैं एक सैयदज़ादी हूँ, ये नहीं कहूँगी कि क्योंकि अब मेरे पास वो हक़ नहीं, मगर एक सैयद घराने से परवरिश पाने के बाद इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरा दिल मज़बूत है। मैंने अपने दिल के दरवाज़े पे सख्त पहरे लगाए हैं, जो कम से कम कोई नामहरम मर्द नहीं खोल सकता। जो ठुकराने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। और एक बात मैं वाज़ह कर लूँ, लाला ने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया नहीं है। वो ऐसा मर के भी नहीं कर सकते। बस उनकी एक ख्वाहिश थी तुम्हें हमेशा खुश देखने की। हर एक के सामने मुजरिम बना दिया। सबको लाला का फ़ैसला नज़र आ रहा है, मगर कोई ये नहीं देखता उन्होंने ऐसा फ़ैसला क्यों किया। लाला ने हरीम अली के मेयार का लड़का बहुत ऊँचा सोचा हुआ था। वो खुद भी उस मेयार पे पूरा नहीं समझते थे। इन्हें लगा था ताबिश लाला तुम्हारे लिए आइडियल शौहर साबित होंगे। लाला कोई नजूम ही नहीं थे जो उनको पता चल जाता। सबसे पहले से जोड़े आसमानों पे बनते हैं। तुम्हारा निकाह ताबिश लाला से पहले से लिखा हुआ था, जो कोई कुछ भी करता होकर ही रहना था। आरवी संजीदा भरे लहजे में कहती कमरे में रुकी नहीं थी, जबकि हरीम तो जैसे पत्थर की बन गई थी। आरविश की बातें इसको किसी तमाशे से कम नहीं लग रही थी। आपको क्या पता आपी, जब आप किसी को हद से ज़्यादा चाहो और वही इंसान आपका हाथ पकड़कर किसी और के हवाले करे तो क्या महसूस होता है। ख्वाब करची करची हो जाते हैं, दिल रेज़ा रेज़ा हो जाता है, जीने की तमन्ना आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। पर आप ये नहीं समझ सकती, क्योंकि आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, या आप ऐसी मोहब्बत को मानती नहीं, अपनी अना का परचम बुलंद करना जानती हैं। वरना अगर मोहब्बत होनी होती है तो हो जाती है, चाहे फिर आप अपने दिल पे कोई मजबूत किला ही क्यों ना बांध लो। बस मोहब्बत के 2 अक़साम होते हैं, एक वो मोहब्बत जिसमें आप बेख्तियार हो जाते हैं, दूसरी मोहब्बत में आपको अपनी मोहब्बत पाने से ज़्यादा अपनी अना अजीज़ होती है, और हमें जो मोहब्बत हुई है उसमें हम बेख्तियार हुए थे। हरीम अपना सर घुटनों में गिराती उदास मुस्कुराहट से सोचने लगी। शाज़िल गाँव पहुँच गया था, मगर उसको पहुँचते-पहुँचते रात हो गई थी। तभी वो सीधा हवेली आया था। माही के पास अगले दिन जाने का सोचा था इसने, क्योंकि इसको लग रहा था अब माही अभी तक अपने वालिदैन के पास होगी। मगर जब अपने कमरे में आकर लाइट ऑन करके बेड पे लेटे मौजूद को देखा, तो उसको हैरत की बजाय खुशगवार का एहसास नया गिरा। शाज़िल आहिस्ता कदमों के साथ चलता बैठकर गौर से माही को देखता उसके चेहरे पे गिरे बाल पीछे करने लगा। तो माही ने चौंक कर आँख खोली तो उसको इतनी जल्दी आँखें खुलता देखा शाज़िल को हैरत ज़रूर हुई।
शाज़िल माई एक जिस्म उठती, शाज़िल के चेहरे पे हाथ फेर कर उसकी मौजूदगी का एहसास करने लगी। इसको ये सच एक ख्वाब लग रहा था। हाँ, मैं, मगर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? शाज़िल उसका हाथ पकड़े नरमी से पूछने लगा तो माई जैसे नींद से जागी। शाज़िल, आप सच में हैं? माई की आंखों में नमी उतर आई। नहीं, मेरा भूत तुमसे मिलने आया है। शाज़िल उसके एक ही सवाल पे चिढ़ कर बोला, आप कहाँ चले गए थे? मुझसे एक बार भी राब्ता नहीं किया। आप कितने ज़ालिम हैं, कितनी आसानी से मुझे भूल जाते हैं। ऐसा कौन करता है? बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी छोड़ते हैं मगर अमल थोड़ा भी नहीं करते। आप बिल्कुल अच्छा नहीं करते मेरे साथ। मैं बहुत बहुत नाराज़ हूँ आपसे। 2 माह बाद वापस आए हैं, पर इस अरसे में एक बार भी ये नहीं सोचा माही कैसी होगी, कि आपको मेरी ज़रा परवाह नहीं। माही ज़ोर से शाज़िल के गले लगती, रोती, बोलने लगी। शाज़िल जो इसकी हरकत पे हैरान था, मगर उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहाता किया। यहाँ देखो मेरी रूह, यहाँ देखो मेरी तरफ क्यों क्यों रो रही हो इतना? मैंने कौन सा आने में 10 साल लगा दिए हैं, और इस बीच तुम्हारे बालों में चांदी घुल गई और मेरे इंतज़ार में तुम्हारी जवानी बर्बाद हो गई। शार्दुल उसका चेहरा सामने करता उसके आंसू साफ करने लगा तो माई जो रोने में मसरूफ़ थी। शार्दुल के मुँह से ऐसी सीरियस सिचुएशन में बेतुकी बातें सुनकर मुँह खोले इसको देखने लगी। शार्दुल, आप बहुत मेन है। माही उसके कंधे पे मुक्के बरसाती धूल रोने लगी जब शार्दुल हंसकर उसको दोबारा से अपने सीने से लगाया। मजाक कर रहा था यार, सोचा तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, मुझे क्या पता था तुम्हारा टेम्परेचर गर्म है। शाज़िल आराम से कहता, आखिर में अपनी आदत से मजबूर हुआ। बात ना करें आप, माही मुँह फुसोर कर बोली। फिर किससे करूँ? शाज़िल उसके बालों में बूसा देता शरारत से बोला। अपनी होती सोती से। माही ने कहा, अच्छा ना इधर देखो मेरी तरफ, यहाँ कैसे आई तुम? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के पास छोड़ा था। शाज़िल कुछ सीरियस हुआ। आप तो चाहती यही है मैं है कि मैं कभी ना आऊँ यहाँ। माँ इसकी बातें बुरा मानकर बोली, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा, अल्लाह ना करके तो बीवी मिली है। शाज़िल उसकी बात तो फ़ौरन से बोला, शाज़िल और कितनी बीवियों की चाहत है आपको, जो यूँ हसरत से बोल रहे हैं? माँ इत्ता पूठी, बीवियों की कहाँ, बस एक तुम्हारी ही चाहत है। शाज़िल उसको देखकर आँख विंक किए बोला तो माँ ही झप सी गई।